Hello students, today we have to discuss about question number 4 of exercise number 6.3 of our 6th chapter, that is differential equation. In 4th question we have to reduce the given differential equation into variable separable form. Okay, means the given differential equation is not in the form of variable separable. We have to separate, we have to change, we have to convert the given differential equation in the form of variable separable, and after getting this form we have to solve, we have to find the solution of that differential equation. Okay, here we have given first sub part of question number 4, that is dy by dx is equal to cos of x plus y. Here there are two variables x and y which cannot be separate easily. Means first of all we have to memorize that, we have to remember what is the variable separable form. In last lecture we have discussed, means question number 3. This one is the question number 4. In question number 3 we have discussed about what is the variable separable form. So what is the variable separable form? In variable separable form we adjust, we collect the functions of x with dx and the functions of y with dy. This process is known as the variable separable form. Okay, but here in question number 4, the given differential equation having x plus y as a combined, that is cos of x plus y. Here we cannot separate the functions of x with dx and the functions of y or y easily with dy. तो यहाँ पे हम x प्लस वाई को, जिसमें x को ds के साथ भेजना है, y को dy के साथ भेजना है, y को dy के साथ कलेक्ट करना है, हम ऐसा नहीं कर सकते. तो हमें क्या करना है? वी हैव टू फर्स्ट ट्रांसफॉर्म इट इनटू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. उसके बाद हम द फंक्शंस ऑफ x को dx के साथ कंबाइंड करेंगे, द फंक्शंस ऑफ y को dy के साथ इकट्ठा करेंगे, कलेक्ट करेंगे. ठीक है, तो कैसे करेंगे? उसके लिए हमें एक प्रोसेस है. ये जो x प्लस वाई है, जो वेरिएबल्स हैं जो एक ब्रैकेट के अंदर है, जो कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में है, उनको हम कुछ एज्यूम कर लेते हैं. दैट इज लेट x प्लस वाई इज इक्वल टू यू. उसे हम u एज्यूम कर लेते हैं. लेट x प्लस वाई इज इक्वल टू यू, टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 एंड डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x is dy by dx and derivative of u with respect to x is du by dx. Okay, कहने का मतलब है, means to say that when we transform the system which are in x and y, एक किसमें था? x और y में था, उसे हम u में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, उसे हम u में ट्रांसपोज, उसको u में चेंज कर रहे हैं. सो वी हैव टू ट्रांसफॉर्म dy बाई dx इन द फॉर्म ऑफ du बाई dx. तो हमें dy बाई dx को du बाई dx में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो हम क्या करेंगे इसके लिए? dy बाई dx इज इक्वल टू du बाई dx माइनस 1. आ गया समझ में? मतलब जो सिस्टम x और y में था, हम उसे u में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, u में कन्वर्ट कर रहे हैं. सो हमें dy बाई dx को भी du बाई dx में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो हमने यहाँ पे क्या किया? dy बाई dx इन द फॉर्म ऑफ du बाई dx फाइंड आउट किया. दैट इज dy बाई dx इज इक्वल टू du बाई dx माइनस 1. इतना हम फाइंड आउट किए.
Okay, let us substitute these conversion in the given differential equation, that is dy by dx is equal to du by dx minus 1 is equal to cos of u. भाई x प्लस वाई को आपने क्या एज्यूम किया है, u एज्यूम किया है. अब देखिए du by dx इज इक्वल टू cos of u प्लस 1. cos ऑफ ए माइनस 1 उधर गया तो प्लस 1 हो गया. अब ए किसका फंक्शन है, u का फंक्शन है. cos u प्लस 1 इज द फंक्शन ऑफ u. तो इसके साथ हमें क्या चाहिए, इसके साथ हमें du चाहिए, क्योंकि यह u का फंक्शन है. सिंस cos u प्लस 1 इज द एक्सप्रेशन ऑफ u, फंक्शन ऑफ u, सो इसके साथ हमें du चाहिए. तो du को क्या करोगे, इसके साथ भेजोगे. तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1/dx है. यहाँ पे क्या है, cos u प्लस 1 है. कहाँ पे जाएगा, नीचे जाएगा, du बनाएगा. अब dx कहाँ पे है, इन डिनोमिनेटर में है. du कहाँ पे है, इन डिनोमिनेटर में. और ये दो कैसा है, इक्वल फ्रैक्शन है, इक्वल रेशो है. तो यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ इक्वल रेशो we can invert, inverting property of fraction, we get dx upon 1 is equal to du upon cos of u plus 1. Okay, so we have integral of 1 dx is equal to integral of 1 upon cos of u plus 1 du, means taking इंटीग्रल ऑफ बोथ द साइड्स. ओके, अब यहाँ पे तो हो जाएगा इसका इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x, क्या होगा, x हो जाएगा. बट यहाँ पे हमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, दैट इज cos u प्लस 1. cos u प्लस 1 होता क्या है, दैट इज 2 cos स्क्वायर u बाई 2 माइनस 1. cos u का ये फार्मूला है, दैट इज 2 cos स्क्वायर u बाई 2 हाफ एंगल फार्मूला 2 cos स्क्वायर u बाई 2 माइनस 1 और प्लस 1 तो पहले से ही था du, तो 1 और 1 कैंसिल होगा. वी गेट 1/2 फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द इंटीग्रल वी हैव 1/2 cos स्क्वायर u बाई 2 और यहाँ पे हो गया du. सो ए देखो, ए वाला सॉरी यहाँ पे 1/2 पहले से लिखा है मैंने, तो 2 मत लिखिए, 2 cos स्क्वायर u बाई 2 मैंने 1/2 पहले से लिख दिया है. सो 1/2 1 अपॉन cos स्क्वायर u बाई 2 दैट इज sec स्क्वायर ऑफ u बाई 2 और ए du. एंड वी नो दैट इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर x विद रिस्पेक्ट टू x इज tan ऑफ x. सो दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू tan ऑफ x, दैट इज tan ऑफ u बाई 2 and dividing by coefficient of u, dividing by coefficient of u. u का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 1/2 है, तो हमें 1/2 से डिवाइड करना पड़ेगा. और यहाँ पे क्या लिखना है, प्लस c लिखना है. तो 2 and 2 गेट कैंसिल्ड, वी हैव tan ऑफ u बाई 2 एंड tan ऑफ u. u का मतलब क्या, u का मतलब है x प्लस वाई अपॉन 2 प्लस c. तो x is equal to, so we have solution, that is x is equal to tan of x plus y by 2 plus c. So यह रहा आपका solution of the given differential equation first, which are not in the form of variable separable form. पहले वह variable separable form में नहीं था, तो आपने उसको variable separable form में convert किया. And then solution is x is equal to tan of x plus y by 2 plus c. Next question is x minus y to the whole square dy by dx is equal to a square. यहाँ पे x minus y is subtracted with each other, means we cannot separate x and y, means here we have to transform it into variable separable form, means the functions of x should be present with the dx and the functions of y should be present with the dy.
ओके, तो कैसे करेंगे, यहाँ भी तो ऐसा कंबाइंड है लास्ट क्वेश्चन की तरह, तो हमें क्या करना है, x माइनस वाई को u एज्यूम कर लेना है, ठीक है। तो टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ बोथ द साइड्स, मतलब यहाँ पे 1 हो गया y का dy बाई डी एक्स, यू का du बाई डी एक्स। बट तो हमें क्या चाहिए, हमें dy बाई डी एक्स चाहिए, तो एक काम कीजिए 1 को रहने, इसको बाईं तरफ ले लीजिए, दैट इज 1 माइनस डी यू, 1 माइनस डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। इस तरीके से, मतलब जब पूरे सिस्टम को जो x और y में था उसे आप u में कन्वर्ट कर रहे हो, u में ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, सो हमारा एक काम है, वी हैव टू चेंज dy बाई डी एक्स इन द फॉर्म ऑफ du बाई डी एक्स। और यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस du बाई डी एक्स बन रहा है। ओके, आ गया समझ में। तो लेट अस सब्स्टिट्यूट दीज कन्वर्जन्स एज x माइनस वाई को आपने क्या एज्यूम किया है, x माइनस वाई को आपने u एज्यूम किया है, तो यहाँ पे क्या बन गया, u स्क्वायर बन गया। और यहाँ पे dy बाई डी एक्स है जो किस में कन्वर्ट हो रहा है, 1 माइनस du बाई डी एक्स में कन्वर्ट हो रहा है, और दिस वन इज इक्वल टू a स्क्वायर, ठीक है। अब जरा u स्क्वायर को यहाँ भेज दीजिए, तो मतलब 1 माइनस डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपान यू स्क्वायर। तो इस तरीके से अगर आप 1 माइनस ए स्क्वायर अपान यू स्क्वायर अपान 1 करोगे और इसको दाईं तरफ मीन्स डी यू बाई डी एक्स फाइंड आउट करोगे, ओके। सो टेकिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 इंटू यू स्क्वायर, that is u square minus 1 into a square is a square upon 1 into u square is u square is equal to du by dx. Okay, so du by dx can changes in the form of u and a. A is the constant, that is u square minus a square upon u square is equal to du by dx. So after, and since we are seeing that the left hand side is the function of u, so the functions of u should adjusted with the du, okay। तो एक काम कीजिए, u स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर एंड du मीन्स इनटू 1 अपॉन du, okay। du is transformed to left hand side becomes 1 upon du, and right hand side we have 1 upon dx, 1 upon dx. And since dx and du are present in denominator, so we have to invert the given equal fractions, equal ratios. So inverting the given fractions, we get u square upon u square minus a square, du is equal to dx, and taking integration of both the sides we get, taking integration। अब देखो u स्क्वायर यहाँ पे है, u स्क्वायर यहाँ पे है, that is the function of u, and the degrees of both numerator and denominator are equal, so we have to use our cancellation process। अब एक कैंसिलेशन प्रोसेस कब होगा, जब यहाँ मतलब इन न्यूमरेटर माइनस ए स्क्वायर होगा, ओके। सो अप्लाइंग कैंसिलेशन प्रोसेस, दैट इज यू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, डी यू इज इक्वल टू 1 डी एक्स। आया समझ में। हमें वी हैव टू यूज कैंसिलेशन प्रोसेस सिंस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव सेम डिग्रीज, ओके। सो यहाँ पे कैंसिलेशन कब पॉसिबल होगा, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के इक्वल होगा। इन न्यूमरेटर देर इज ओनली यू स्क्वायर, बट इन डिनोमिनेटर u square minus a square is present. So for cancellation we have to adjust minus a square. So minus a square can be adjusted as minus a square plus a square. अब taking adjustment, that is u square minus a square upon u square minus a square dx plus a square into 1 upon u square minus a square du is equal to 1 dx, ठीक है।
अब ए तो कैंसिल हो गया, अब यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे डी यू होना चाहिए, डी यू और प्लस ए स्क्वायर 1/u² माइनस ए स्क्वायर डी यू इज इक्वल टू 1 dx। ओके, इतना तो समझ में आ गया होगा। और इसके बाद इंटीग्रल ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज x and integral of 1 with respect to u is du. Okay, let us change that 1 with respect to u is u and in plus a square and 1 upon x square minus a square, integral of 1 upon x square minus a square, 1 upon x square minus a square dx is equal to 1 upon 2a log of x minus a upon x plus a plus c। तो यहाँ पे देखो ए यू का फंक्शन है, यहाँ पर x का फंक्शन था, तो आपने x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया एंड हियर यू आर इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू u एंड फंक्शन किसका है, u का फंक्शन है। तो क्या होगा 1 upon a स्क्वायर तो पहले से था इंटू 1 upon 2a, ए का मतलब a ही है, इंटू लॉग ऑफ x मतलब u माइनस a स्क्वायर दैट इज u माइनस a अपॉन u प्लस a, ओके, प्लस c एंड दिस वन इज इक्वल टू x प्लस c। 1 with respect to u is u plus a square into 1 upon 2a log of u minus a upon u plus a is equal to x plus c। a and a get cancelled, we have u plus a by 2 into log of u का मतलब क्या, u means x minus y minus a upon x minus y plus a is equal to x plus c। u को आपको रिप्लेस करना है, दैट इज x minus y से, x and x get cancelled, we have minus y plus a by 2 into log of x minus y minus a upon x minus y plus a is equal to c। y means upon 1 multiplying and dividing by 2, okay, LCM is 2 into 1 2, LCM is 2 is equal to c, we get minus 2y plus a into log of x minus y minus a upon x minus y plus a is equal to c। तो c means c upon 1 taking cross multiplication to c, तो अपने पास आंसर क्या है, माइनस 2y प्लस a इंटू लॉग ऑफ x माइनस y माइनस a अपॉन x माइनस वाई प्लस a इज इक्वल टू 2c। c क्या है, c इज आवर इंटीग्रल कांस्टेंट और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, सो 2c इज आल्सो अ कांस्टेंट। ओके, सो आंसर इज माइनस 2y प्लस a इंटू लॉग ऑफ x माइनस वाई प्लस a अपॉन x माइनस वाई प्लस a इज इक्वल टू c। आप इसको वहाँ भी चेंज कर सकते हो, आपकी मर्जी। सो दिस वन इज फाइनल आंसर, माइनस को उस साइड भेजोगे तो प्लस हो जाएगा। सो आंसर इज माइनस 2y प्लस a इंटू लॉग ऑफ x माइनस वाई माइनस a अपॉन x माइनस वाई प्लस a इज इक्वल टू c। Okay, so this one is the solution of this differential equation which was not in the variable separable form. First we convert it into variable separable form. Okay, next question number 3rd, that is x plus y dy by dx is equal to sec of x square plus y square। अब यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं x और y, आप इसको तो सेपरेट कर सकते हो, दैट इज y इज प्रेजेंट विद dy एंड x विद dx हो सकता है, बट इसका क्या होगा, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को आप कैसे सेपरेट करोगे, आप नहीं सेपरेट कर सकते, आप उसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना है, तो ये जो कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म्स हैं, कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, इसको आप यू कंसिडर कर लीजिए। सो टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट 2x प्लस 2y dy बाई dx इज इक्वल टू du बाई dx। ओके, तो टेकिंग 2 एज ए कॉमन
we get x plus y dy by dx is equal to du by dx, and x plus y dy by dx is equal to 1/2 into du by dx. बट हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए dy by, हमें चाहिए y, देखो y dy by dx है, और देखो पूरा मिल चुका है, पूरा का पूरा, दैट इज x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स. ये देखो x प्लस डी वाई बाई डी एक्स मिल चुका है, तो कुछ भी दिक्कत नहीं है. अब आप इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द गिवन द फाउंडेड वैल्यूज, दैट इज x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे रखेंगे तो क्या मिलेगा? x प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 into du by dx is equal to sec of u. sec of u, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को आपने क्या एज्यूम किया था? आपने उसे u एज्यूम किया था. तो 1/2 into dy by dx is replaced on the place of x plus y dy by dx. यहाँ पे तो यहाँ पे sec y है. देखो a किसका फंक्शन है? u का फंक्शन है. sec ऑफ u का फंक्शन है, तो इसके साथ हमें du चाहिए, तो du यहाँ पे है, उसको आप यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर दीजिए. दैट इज 1/2 इंटू 1/dx इज इक्वल टू sec ऑफ u अपॉन du. अब देखो du और dx कहाँ पे है? इन डिनोमिनेटर में है, तो आप इसको इन्वर्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई कर दीजिए. किसका प्रॉपर्टी? इक्वल रेशो का. तो हमें क्या मिलेगा? 2dx इज इक्वल टू du अपॉन sec ऑफ u, एंड दिस वन इज इक्वल टू 1/sec ऑफ u, दैट इज cos ऑफ u, cos u du. ठीक है, तो अपने पास 2dx इज इक्वल टू cos of u du. 1/2 2dx is equal to du upon sec of u, that is cos of u du. So taking integral of both the sides, we get 2 integral of dx is equal to integral of cos of u du. We get 2 into 1 dx is equal to cos of u du. Twice of x, integral of 1 with respect to x is x, and integral of cos of u with respect to u is sine of u plus c. Sine minus cos, cos plus sine. So on substituting the value of u means x square plus y square, x square plus y square plus c. So we get 2x is equal to sine of x square plus y square plus c. So this one is the solution of the given differential equation after finding the variable separable form of the given differential equation. Next question is cos square x minus 2y is equal to 1 minus 2 dy by dx है. तो हमें क्या करना है? x माइनस 2y को आप u एज्यूम कर लीजिए. ओके, टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट 1 माइनस 2 इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू du बाई dx. बट वी हैव टू फाइंड d. देखो मिल गया, 1 माइनस 2 dy बाई dx चाहिए था, 1 माइनस 2 dy बाई dx मिला. लास्ट क्वेश्चन जैसा. तो हम क्या करेंगे? इसको ये पूरा क्वेश्चन लेंगे, दैट इज cos स्क्वायर ऑफ u. x माइनस 2y इज इक्वल टू u आपने कंसिडर किया था, एंड दिस वन इज इक्वल टू 1 माइनस 2 dy बाई dx कैन बी रिप्लेस्ड बाई du बाई dx. अब देखो ये cos स्क्वायर u इज द फंक्शन ऑफ u. इसके साथ हमें क्या चाहिए? इसके साथ हमें du चाहिए, बट सो du यहाँ पे है, इसको यहाँ पर ट्रांसफॉर्म कीजिए. सो cos स्क्वायर u अपॉन du इज इक्वल टू 1/dx. बट du एंड dx कहाँ पे है? इन डिनोमिनेटर में है. सो यूजिंग इन्वर्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ इक्वल रेशो, वी गेट du अपॉन
cos square u is equal to dx upon 1 upon cos square u, that is sec square u du is equal to dx. Okay, so taking integral of both the sides with respect to u in left hand side and with respect to x of right hand side. So taking integral of both the sides, we get integration of sec square u du is equal to integral of 1 dx, and we know that integration of sec square u with respect to u is tan of u, and 1 with respect to x is x plus c. So this one is your solution of the given differential equation, and we have to replace u means क्या, u means x minus 2y is equal to x plus c. So this one is the answer of the given differential equation. Okay, I hope आपको समझ में आ गया होगा. So this one is the procedure to change the differential equation which are not in the form of variable separable form. First of all, we convert the given differential equation into variable separable form, and after that, after getting the variable separable form of the differential equation, we solve the differential equation easily. Okay, so students, please make a note, कॉपी कीजिए, समझ में न आया हो तो बताइए. ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय.